Praise the Lord. Hallelujah. I was the ex-Catholic priest. मैं पहले का जो है कैथलिक फादर था. I worked for 12 years as a Catholic priest. मैंने फादर बनकर 12 साल काम किया. Even in this parish of Kolva, I was the assistant for 4 years. ये कोलवा के चर्च में मैं असिस्टेंट फादर के तौर पर 4 साल काम किया. But today I'm born again. लेकिन आज मेरा उद्धार हो गया है. I can share with you a lot of things, but I would like to share the important things. मैं आपके साथ बहुत कुछ बांट सकता हूँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मैं आपके साथ Neither you have time to listen, आपके पास भी समय नहीं है सुनने के लिए, neither I have enough time to share everything. और ना ही मेरे पास उतना समय है कि मैं आपके साथ बांट सकूं. I joined a seminary when I was 21 years. जब मैं 21 साल का था, एक सेमिनरी का मैं सदस्य हुआ. After my BCom graduation, मैंने बीकॉम की पढ़ाई के बाद as a young person, I dreamed to do the work of God. और एक जवान लड़का होने के नाते मुझे अच्छा लगता था परमेश्वर का काम करना. As a Catholic person, you can do work of God in authority only as a priest. और अगर एक क्रिस्ती व्यक्ति होने के नाते आप परमेश्वर का काम तभी कर सकते हो जब आप एक फादर के रूप में काम करो. So when I was outside, I thought everything is holy inside. और जब मैं बाहर था तो मुझे लगता था कि अंदर सब पवित्र है. From the day one when I joined, लेकिन जब पहला दिन से जब मैंने वहां पर मैं जुड़ा वहां पर, I saw more darkness inside than darkness outside. मैंने अंदर बाहर से ज्यादा अंधकार को देखा. But something made me go ahead. कुछ ऐसी बात थी जो मुझे आगे जाने के लिए कर रही थी. There are times I just wanted to back off, run away. और कुछ ऐसे समय थे कि मैं पीछे हटना चाहता था. I was ordained in 2008. Ordained as a priest, as a Catholic priest in 2008. 2008 में एक कैथलिक फादर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई. Very first year, I got so much discouraged. I wanted to run away. पहले ही साल में मैं इतना निराश हो गया कि मैं भाग जाना चाहता था. But for some reasons, I stayed back. कुछ ना कुछ कारण से मैं रुक गया. Lord had to teach me a lot of things. परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाना चाहते थे. Lord wanted to show me more darker things. परमेश्वर मुझे और भी अंधकार भरी बातें दिखाना चाहते थे. I saw everything. मैंने सब कुछ देखा है. But I didn't have enough courage to move out now. अब मुझे उतना साहस नहीं था मेरे अंदर वहां से बाहर निकलने का. When I was a Catholic priest, assistant priest in Kolva Church. एक कैथलिक असिस्टेंट प्रीस्ट जो कोलवा चर्च के हैं. In my last year, in the 4th year, I met with a terrible accident. जब मैं कैथलिक असिस्टेंट प्रीस्ट के रूप में काम करता था इधर कोलवा चर्च में, तो 4थे साल में जो मेरा आखिरी साल था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ. When I was vomiting blood, I vomited blood second time when I was in ambulance. और मैं एम्बुलेंस में जब लेके जा रहा था, दूसरी बार मुझे खून की उल्टी हुई. I knew I was dying. और मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ. When you are in the moment of death, और जब आप मृत्यु के क्षण में होते हो, there are no games to play. वहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं, मतलब भागने की बातें नहीं होती है. I said to Jesus, मैंने यीशु मसीह से कहा, Lord, I know if I die right now, I'm going to hell, straight away to hell. मैंने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ अगर मैं इस समय मर गया तो मैं नरक जाऊंगा. This was my 5th year of my priesthood. और ये मेरा पादरी बन के मेरा 5वां साल था. And I knew when I was dying, I'm going to hell, straight away to hell. और मैं पादरी होके भी मैं जानता था कि जब मैं मरने वाला था, अगर मैं मरूंगा तो मैं नरक जाऊंगा. I said to Jesus, मैंने यीशु मसीह से कहा, Lord, give me a chance. मुझे एक मौका दीजिए. Give me a chance, Lord. मुझे एक मौका दीजिए. And if you give me a chance, और अगर आप मुझे एक मौका देते हो, I'm going to declare your gospel. और मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा. I didn't even realize what I was saying. And when I was in hospital, when I was put in the MRI machine to scan my head, I had fractures, Helen fracture to my skull, multiple fractures in my body, bruises.
My both eyes had almost turned blind. There was blood in my both eyes. I'd broken my jaws. My face was disfigured, and I was like a fish out of water. बहुत सारे, जब मैं अस्पताल में था बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे, जबड़ा टूट चुका था, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और पानी से बाहर निकाले हुए मछली के जैसा मेरी हालत थी. Then then I was unconscious. I forgot everything. I fell into deep sleep. और मैं बेहोश हो गया और मैं सब कुछ भूल गया और बहुत गहरी नींद में चला गया. When I woke up in the morning, और जब मैं सुबह उठा I couldn't say anything. मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा था. Someone helped me to the washroom. और किसी ने मुझे अंदर वॉशरूम तक लेके गए. Then I wanted to see my face. मैं अपना चेहरा देखना चाहता था. What has happened to me? क्या हुआ है मेरे साथ. I pushed my eyelid strongly, deeply inside. I pushed my eyelid. और मैंने आंखों की पलक को जो है जबरदस्ती थोड़ा खोलने के लिए कोशिश किया. And I couldn't recognize myself. और जब मैंने देखा तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था. There was no shape for my face. मेरे चेहरे का कोई आकार नहीं बचा था. There was no beauty. कोई सुंदरता नहीं बची थी. I was like a shapeless coconut, coconut with a shell, no shape at all. एक नारियल के जैसा बिना किसी आकार के मेरा चेहरा हो गया था. To make it short, Lord gave me a chance. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया. After that incident, और उस घटना के बाद I lived. मैं जिया. More 7 years I worked as a priest. फिर भी और 7 साल मैंने पादरी के रूप में काम किया. Through a miraculous breakthrough, पर जो चमत्कार के द्वारा Lord took me to UK. परमेश्वर मुझे यूके लेके गए. But that was not my decision. लेकिन वो मेरा निर्णय नहीं था. Neither my destiny. I never dreamt of UK. कभी भी मैंने सपना भी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था यूके जाने का. To make it short, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा. It was Lord's plan. वो परमेश्वर की योजना थी. I did dreamt of abroad. I dreamt of Canada all my life. बाहर जाने के बारे में सोचता था तो मैं कनाडा जाने के But बारे I में never thought of UK. लेकिन मैंने यूके के बारे में कभी भी नहीं सोचा था. When I had nothing else to do, जब मेरे पास कुछ और नहीं था करने के लिए, nobody else was with me, कोई मेरे साथ नहीं था, I kept on reading the Bible day and night. मैं दिन रात ये परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था. And Lord revealed himself to me. और परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया. The living Lord, जीते परमेश्वर ने, Jesus Christ. यीशु मसीह. As a Catholic person, एक क्रिस्ती होने के नाते I led people into idolatry. मैं लोगों को अपने यूनिटरी में लेके जाता था. Idolatry में मूर्ति पूजा. ये आइडल. हाँ, तो मूर्ति पूजा में मैं उनकी अगुवाई करता था. After saints and Mary, और बहुत सारे संतों के पीछे, मरियम के पीछे not the biblical Mary, जो बाइबल में है उस मैरी के पीछे नहीं. the Catholic Mary जो कैथलिक लोग जिस मरियम को आराधना करते हैं, is not the biblical Mary. वो बाइबल पर आधारित नहीं है. She is an entity. वो सिर्फ एक मूर्ति है. She is an entity वो एक आत्मा है who draws worship for herself, जो अपने लिए सारे आराधना लेती है. robbing, परमेश्वर चुराती है. the due worship which is meant for Jesus Christ alone, जो परमेश्वर के लिए बनी है, जो for आराधना, he is the only mediator. क्योंकि वो एक ही मध्यस्थ है. He doesn't need any other co-mediator or mediatrix. और कोई मध्यस्थी करने वाले की उसको आवश्यकता He नहीं. doesn't want some puppets. He doesn't want any puppets to take his glory. कोई भी और मूर्तियों की या किसी और वस्तु की उसे जरूरत नहीं है जो उसकी महिमा He's ले come सके. only for one reason, वो सिर्फ एक ही कारण से आया, to bring men to humankind, मनुष्य को, to bring the humankind, to draw the humankind. मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाने के लिए. Yes, for this reason, to draw him to God, to know that every person may know the living God. ताकि हर एक मनुष्य जीवते परमेश्वर को जान Every सके. person may have a relationship with the living God. ताकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो. If he asks me today,
अगर आप आज मुझसे पूछते हो, are Catholics Christians? सब का क्रिस्ती लोग, Are they, if you ask me today, if are Catholics Christians? अगर क्रिश्चियन लोग मुझसे आज पूछते हैं, No. If Catholics are Christians, कैथलिक क्रिश्चियन है क्या आप आज अगर आप मुझसे पूछते हो आज कि क्या कैथलिक लोग क्रिश्चियंस हैं, and I will say no. कैथलिक लोग मैं कहूँगा कि वो क्रिश्चियंस नहीं है, Because all my life I was Catholic. क्योंकि मेरे पूरे जीवन भर मैं कैथलिक I था। worked as a Catholic priest मैं कैथलिक फादर के रूप में मैं for काम कर 12 रहा years. था। For 12 years 12 साल के लिए मैं कैथलिक फादर के रूप में काम कर रहा था। to be a Christian. एक- Christian means one who follows Christ, एक क्रिश्चियन होने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन वही है जो यीशु मसीह के पीछे, क्राइस्ट के पीछे one who चलता है, worships Christ जो one- यीशु मसीह की आराधना करता and है Christ alone. और सिर्फ उसी की आराधना करता है। And I don't see that in Catholics. और मैं कैथलिक लोगों के अंदर ये बातों को नहीं देखता। Now I'm for my holidays. अभी मैं अपनी छुट्टियों पर हूँ। I see around everywhere some feast of some Mary or some saint, some rosaries. But I don't hear the name of Christ. मैं हर जगह पर यहाँ पर देखता हूँ कुछ मैरी के नाम से कुछ उत्सव मनाया जाता है, कुछ संतों के नाम से, लेकिन मैं यीशु मसीह का नाम नहीं सुनता And I'm very blunt. और मैं बहुत स्तब्ध हो गया। I don't care who you are, मुझे कोई परवाह नहीं है आप what कौन you हो, are. आप क्या हो। My one family, I'm the only Christian there. अब मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं एक ही क्रिस्ती हूँ, Though I've lost everything, हालांकि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, lost everyone, मैंने सबको खो दिया है, but I have the greatest treasure, लेकिन सबसे बड़ा धन जो मेरे पास है Jesus Christ. वो यीशु मसीह है And He is enough. और And वो he is काफी enough. है। There are only two places, सिर्फ दो जगह हैं, heaven or hell. स्वर्ग और नरक। You can go to two places, either in heaven or hell. हम सिर्फ दो जगहों पर जा सकते हैं, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। As a Catholic priest, एक कैथलिक फादर होने के नाते people used to come and give money, Father, offer a mass. और लोग आकर मुझे पैसे दिया करते थे। I'm not sure my father or mother is in heaven, maybe they are in purgatory, offer a mass. और वो कहते थे कि मुझे पता नहीं है मेरे माँ बाप जो मर गए हैं वो स्वर्ग में है या नहीं है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। And as a Catholic priest, I've seen they do it every year, 30-40 years pass. The parents are dead and gone. Father, offer a mass. और कैथलिक प्रिस्ट होने के नाते मैंने देखा है कि 30-40 साल होने के बाद भी लोगों के मृत्यु के बाद वो लोग यही काम करते रहते हैं। There's nothing called this nonsense called purgatory. ये जो प्रार्थना होती है मृत्यु के बाद, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। There is only heaven वो सिर्फ स्वर्ग है and there is hell. और नरक है, There's no middle place. और उसके बाद तीसरी कोई जगह नहीं है। As a Catholic priest, when a corrupt person would die, एक कैथलिक प्रिस्ट के अनुसार जब एक करप्ट व्यक्ति मरता है, they would gather some 15 priests, 20 priests, और वो 15-20 फादर लोगों को इकट्ठा करते हैं, famous priests to say a sermon, और वो बहुत जाने माने प्रिस्ट को इकट्ठा करते हैं, और and वहाँ they would पे- declare that person is going to heaven. और वो घोषणा करते हैं कि वो जो व्यक्ति मर गया वो स्वर्ग चला गया है। We gather 100 priests or 1,000 or all the bishops of the world. आप कितने भी जो है फादरों को इकट्ठा कर लो, सारे दुनिया के बिशप को आप इकट्ठा If कर that लो, person has not known Christ when he or she was living, अगर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को नहीं जाना जब वो इस पृथ्वी पर था, they are gone to hell forever. तो वो लोग नरक चले गए हमेशा के लिए। One thing, one of my friend who was a believer told me when I came to faith in UK, अब मेरा एक दोस्त था जो विश्वासी था, और जब मैं विश्वासी बना उसने मुझे एक बात बताई थी जब मैं यूके में था। don't even imagine the church here is different from the Catholic church. आप ये बात सोचो भी मत कि यहाँ की चर्च जो है कैथलिक चर्च से बहुत ही If अलग you है। expect much, you will be disappointed greatly. अगर आप बहुत सारी बातों की आशा रखते हो तो आप बहुत निराश हो जाओगे, And these words helped me. और ये बातों ने मेरी सहायता I see की। the church in India is in fire. मैं देखता हूँ कि आज भारत में कलीसिया जो है बहुत ही अग्नि पर है, Because the gospel, there's no total freedom
for the gospel to be preached. क्योंकि यहाँ पर वो पूरा रीति से भर गए हैं यीशु मसीह का प्रचार करने के And लिए, that is good. और ये अच्छी बात है। Here in London, here in UK, you have all the freedom to preach the gospel. लंदन में, यूके में पूरी आजादी है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, But the pastors are cold, लेकिन पासवान जो है ठंडे हो गए हैं, churches are cold. और जो है कलीसिया है जो है ठंडी हो गई है। 3 years back, when I started to preach the gospel, 3 साल पहले जब मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरुआत किया, the pastors themselves would discourage me. और पासवान ही जो है मुझे उत्साहित नहीं करते थे, The Christians themselves would discourage me. क्रिस्ती लोग खुद मुझे उत्साह आगे नहीं बढ़ाते थे। Nobody would come with me on the street. कोई भी मेरे साथ सड़कों पर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। But I brought a small microphone, और मैंने छोटा सा माइक्रोफोन खरीदा, a small voice amplifier, एक छोटा सा वॉइस एम्पलीफायर खरीदा, and I started to preach the gospel on the streets of London. और मैंने लंदन की सड़कों पर सुसमाचार सुनाना प्रचार किया। In London, around London, and different places, wherever I went. लंदन में, उसके आजू बाजू में, और हर एक जगह पर जहाँ पर भी मैं गया, Initially, nobody would come with me. पहले शुरुआत में कोई भी नहीं आता था मेरे साथ। Our Goan Catholics would see me सारे गोवन कैथलिक जो वहाँ पर है वो लोग मुझे देखते थे, and give me a shower of bad words, और वो बहुत गालियाँ देते थे मुझे, shout, scream, और चिल्लाते थे मेरे ऊपर, and use all the dirtiest vocabulary against me. और सारी गंदी बातें बोलते थे मेरे खिलाफ। And slowly, I became noticed. और धीरे धीरे मेरे लोगों का ध्यान गया मेरे ऊपर। Most of the English people, they are very cold, they are backslidden, and they are not interested anymore in the gospel. बहुत सारे अंग्रेज लोग जो है वो ठंडे हो गए हैं और विश्वास से पीछे हट गए, और उनको सुसमाचार में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। But the Asians, the Pakistani, the Bangladeshis, the Afghanistani people, and all other people, a lot of Hindus, Indians, whoever is there, they would challenge me when I preach the gospel. लेकिन जो वहाँ पे एशिया के जो लोग वहाँ पर थे, वो जो है मुझे चैलेंज करते थे जब मैं प्रचार करता था। As a Catholic priest, I couldn't even imagine debating with a Muslim person. एक कैथलिक फादर होने के नाते मैं ये बात को सोच भी नहीं सकता था कि मैं कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ वाद विवाद But करूं। Lord gave me so many revelations. लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतने सारे प्रकाशन दिए, None of them could later on stand before me to कोई भी debate. उनमें से मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया था। So much of revelation and so much of wisdom. इतना प्रकाशन और इतना ज्ञान परमेश्वर ने मुझे That दिया very moment, कि उस क्षण that they were so much frightened वो इतने डर जाते थे to come and debate with me. वो आके मेरे साथ वाद विवाद करने के लिए। Our pastor said, nothing like sharing the gospel. पासवान ने कहा कि सुसमाचार प्रचार के जैसा और कोई काम नहीं है। If Lord had to open our spiritual eyes, इफ परमेश्वर अगर हमारे आत्मिक आंखों को खोलते हैं, we would see burning hell तो हम देखेंगे कि नरक जल रहा है, and all around you, swimming in the fires, और बहुत सारे लोग वहां पे जो है तैर रहे हैं उस आग में, condemned and lost. दोष लगाते हुए और खोए हुए। You never know your last moment. You never know your last moment. हम कभी भी अपना आखिरी क्षण हम नहीं जानते। Lord gave me a chance. परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। It is joy to share the gospel. ये बहुत आनंद की बात है ये सुसमाचार का प्रचार करना। Every moment I'm ready to preach the gospel. हर क्षण मैं तैयार हूँ सुसमाचार प्रचार And I believe और मैं विश्वास करता Christian हूँ क्रिस्ती is a person वो व्यक्ति है who is on a fire, जो अग्निमय होना चाहिए, with fire of the Holy Ghost. अब पवित्र आत्मा की आग के साथ You're firing all the time. हर एक समय में उस आग से भरा हुआ। There are no frozen, cold Christians. कोई भी ऐसा ठंडा क्रिस्ती नहीं होना You चाहिए। can be on fire या तो वो अग्नि पर हो सकता है or you can be cold and या frozen. आप ठंडे हो सकते हो, But today is the day. लेकिन आज आपका दिन है, Today is the time. ये समय आपका है। Share the gospel. आप सुसमाचार प्रचार करो। Somebody will go in heaven. Somebody will go to heaven कोई तो स्वर्ग जाएगा because of you. आपकी वजह से। Lord has given you full authority.
परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। As a Catholic, we used to look for God in the temple, in the church. जब मैं पहले कैथलिक में था तो मैं मूर्ति में परमेश्वर को देखता था, But as a Christian, लेकिन आज एक क्रिस्ती विश्वासी होने के I am the living temple. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। My God is dwelling in me. परमेश्वर मेरे अंदर My है। God is working with me. परमेश्वर मेरे साथ काम करता When I है। walk, my God walks with me. जब मैं चलता हूँ परमेश्वर मेरे साथ चलता है। And if you give a hand to somebody today अगर आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हो आज and tell him or her the beautiful name of Jesus, और उसको आप यीशु मसीह का सुंदर नाम सुनाते हो salvation will come और मुक्ति आएगी, to them and their families. उद्धार आएगा उनके परिवार में। The name of Jesus be glorified, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, honored, आदर मिलेगा and worshipped और उसकी आराधना all the times. हर समय में। There's nothing more beautiful than Jesus. इससे सुंदर, यीशु मसीह से सुंदर और कुछ भी नहीं है। I found him मुझे वो मिल गया and I found everything और in मुझे him and सब through him. उसके द्वारा और उसमें मुझे सब कुछ मिला। Jesus is sufficient. यीशु मसीह काफी है। In moment of my death, मेरे मृत्यु के क्षण में my wife, मेरी पत्नी, my family, मेरा my परिवार, friends, मेरे दोस्त, my pastors, मेरे पासवान, nobody will be there. कोई भी नहीं रहेगा मेरे Just me साथ। and Jesus. सिर्फ मैं और यीशु। Love you, Jesus. मैं यीशु मसीह हमसे प्यार करते हूँ। The most beautiful name, Jesus. सबसे सुंदर नाम है यीशु का नाम। Tell it to your friends. आप वो नाम को अपने दोस्तों को Tell बताओ, it to your enemies. आप अपने दुश्मनों को बताओ, Speak it on the street, आप रास्तों पर उसके बारे में in the बात करो, buses, बस में बात करो, trains, ट्रेन में बात करो, even in hospital. हॉस्पिटल्स में बात करो। Even if you're dying on the bed, अगर आप वहां पर मर भी रहे हो तो भी tell the next neighbor. आपके जो बाजू में है उसको If you बताओ। believe in Jesus, अगर आप यीशु मसीह में even if विश्वास you करते die today, अगर आप आज मरते this हो, very moment, अब इस क्षण मरते you हो go to heaven. तो आप स्वर्ग जाओगे। Amen. Thank you.